Good morning, everyone. Now, today's topic is similarity of triangles. We just continuing the topic that the two triangles are similar if. Now, what is the condition there? That is, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. In my last topic, you just did for the polygons. Okay, but now here we will talk about the triangles. Clear? So see, I have given a note here also. On the basis of this similarity conditions, if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as what? Equiangular triangles. What? They are known as what? Equiangular triangle. Thus a very important result can be verified, and what? That is Thales theorem. What? The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. Once again I am reading for you what is given. The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles. Equiangular, that is just I mentioned here for the similarity condition of angles, is always the same. Means suppose we have considered the triangle ABC. So here you can say that the ratio of AP upon PB is equal to ratio of AP upon PC. That I have written here. That is what AP upon PB is equal to AQ upon QC. See here, it is AP upon PB is equal to AQ upon QC. That I have written. Now this is also called as what? Basic proportionality theorem. Okay, this statement is also called as what? Basic proportionality theorem, or it is also called as Thales theorem. What? Thales theorem. Now let me introduce you this theorem. It contains 4 marks in examination. Now see what this theorem regards at. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Clear? You can see this statement clearly in the textbook. Let me explain you from my way. Now, what is theorem about? That is, if I am drawing a triangle, so when you are drawing theorem, please sketch the diagram with pencil. Okay, no pen. Suppose triangle ABC is given and a line which is just parallel to the side BC. Suppose line L is here, it is parallel to the side BC, intersect AB at M and AC at N. Clear? So here you will find that the two segments will be formed, the upper part and the lower segment. Here also upper segment and the lower segment. So what you have to prove here in this theorem? It is also called as theorem 6.1. So what you have to prove that AM upon MB is equal to AN upon NC. Clear? ये हमें प्रूव करना है. AM upon MB is equal to AN upon NC. बहुत इजी theorem बच्चों, सिर्फ ध्यान से देखो, आपको देखते ही देखते आ जाएगी. हमें करना क्या है अभी? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. आपके बुक में है नहीं तो आपको लिखना तो पड़ेगा गिवन, और यू कैन राइट डेटा ऑल्सो, जो भी आप लिखते हो गिवन में लिखो. आपको ट्रायंगल ABC गिवन है तो यू राइट हियर इन ट्रायंगल ABC. ओके, कौन सी लाइन है? L. तो आप लिखो यहाँ पर लाइन L is parallel to, किसके पैरेलल है? पैरेलल टू BC. BC के पैरेलल है. ठीक है, फिर लिखोगे इट इंटरसेक्ट्स AB at M and AC at N. ठीक है, ये आपका गिवन पार्ट हुआ. सच दैट, अब क्या लिखोगे? सच दैट
एम एन पैरेलल टू बी सी. ओके, यू आर राइटिंग व्हाट? एम एन पैरेलल टू बी सी. मैं फिर से बता देता हूँ. इन ट्राइंगल ए बी सी, लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी. इट इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम एंड ए सी एट एन. जैसे कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि ट्राइंगल के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. क्लियर? तो लाइन एल पैरेलल टू बी सी है, तो पैरेललिटी की कंडीशन के हिसाब से लाइन एल पर जितने भी पॉइंट आएंगे दे विल ऑल रिमेन पैरेलल टू बी सी. दैट्स व्हाई रिटन हियर एम एन पैरेलल टू बी सी. नाउ व्हाट यू टू डू देन? अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिखो. वी हैव टू प्रूव द रेशियो व्हाट? ए एम अपॉन एम बी. ए एम अपॉन एम बी दैट इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी. ये अपने को प्रूव करना है. देन लेट्स कम टू द प्रूफ. इन प्रूफ, if possible, just write the little bit statement what is given in the given part. So I will write here again. In triangle ABC, M is a point on AB and N is the point on AC, such that MN parallel to BC. Clear? After that you write down constructing. चलो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ ऐसे. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पर. इसको ले लो. P. ओके, तो आप यहाँ लिखो कंस्ट्रक्टिंग एन पी परपेंडिकुलर टू ए बी. एन पी परपेंडिकुलर टू ए बी. देखो एन करके मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह ब्लैंक कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में आके फिलअप करूँगा. और वापस नीचे लिख दो ऑल्सो ज्वाइंट बी एन को ज्वाइन कर दो. बी एन एंड फिर से यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह छोड़ दो. ये क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा. हम ऑलवेज जब इस ट्रायंगल को प्रूव कर रहे हैं तो हमेशा एक एक साइड का रोटेशन लेंगे. अगर हम पूरा एक साथ फिगर ड्रॉ कर देंगे जैसा बुक में दिया है तो फिर आपको थोड़ा सा ट्रायंगल को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकता है. अभी आप देखो कि दो ट्रायंगल बन गए. एक पहला ऊपर का है और ये दूसरा नीचे का ट्रायंगल बना एक एक प्लेन में. सॉरी. तो अभी हम लिखेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज क्या होता है फॉर्मूला? हाफ बेस इंटू हाइट और एल्टीट्यूड वट एवर राइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं. आप लिखो द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड. द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड. दैट इज कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ? ए एम एन. ध्यान से देख सकते हो ट्रायंगल ए एम एन. एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ? एम एन बी. आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना, आपको थ्योरम ऑन द स्पॉट लर्न हो जाएगी. एक एक साइड का हमें करना है. अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ ट्रायंगल ए एन एम, तो मैं लिखूँगा ए एन एम इज इक्वल टू ए एन एम. तो यहाँ पर ए एन एम का एरिया क्या दिख रहा है? देखो साफ साफ दिख रहा है. हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस हो गया ए एम और हाइट क्या होगा? एन पी. तो हम लिखेंगे 1/2 एन पी इंटू ए एम. गिव इट नंबर 1. अब लिखेंगे सिमिलरली नीचे आते हैं बच्चों ये ट्रायंगल एम एन बी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन बी क्या होगा? हाफ. 9th में तुमने पढ़ा होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल में
एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है। तो अगर ये ऑप्टिक एंगल कंसिडर करते हैं तो ये एल्टीट्यूड गया बाहर, तो इसमें भी हाइट क्या होगी NP और बेस क्या होगा MB। तो आपको लिखना है NP इंटू MB। ये हो गया आपका सेकेंड, ये ऊपर पहला ट्रायंगल और नीचे दूसरा ट्रायंगल। नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ 1 and 2, टेकिंग द रेशियो ऑफ 1 and 2, हमारे पास है ANM अपॉन MNB इज इक्वल टू हाफ NP इंटू AM एंड हाफ NP इंटू MB। हमने क्या किया, दोनों का रेशियो ले लिया, कैंसल हाफ एंड हाफ, NP कैंसल, तो वी गॉट ANM अपॉन MNB। ANM मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, MNB मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल MNB। व्हाट वी गॉट AM अपॉन MB। ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन। तो एक साइड का रेशियो हमने निकाल लिया, AM अपॉन MB। क्लियर। अब देखो हमें जाना है इस तरफ, अभी हमने इस तरफ रोटेशन किया, अब इस तरफ रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने प्लेस थोड़ी सी छोड़ी थी, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो अब जो है रोटेशन चेंज करते हैं और यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं MQ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो MQ परपेंडिकुलर टू AC, और ज्वाइन क्या करना है, BN के साथ हमने किसको ज्वाइन कर दिया, CM को। ठीक है, ये अब आपके बुक जैसा डायग्राम हो गया। क्लियर। तो आप प्रैक्टिस करना, तो एक एक साइड का करके करना। अब जब आप सेकंड पार्ट के लिए जाओगे तो आपका दिमाग बस इस तरफ ही घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, इस तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज एक तरफ का तो आपने सॉल्व कर ही लिया। तो आप लिखो सिमिलरली फॉर अदर टू ट्रायंगल्स। अब हमारे पास जो दूसरे दो ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल कौन सा है, AMN, ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल MNC। तो चलो AMN का एरिया निकालते हैं। AMN एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN क्या होगा, ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। तो हम लिखेंगे 1/2, बेस क्या है AN और हाइट क्या है MQ। चलिए इसको डाल देते हैं नंबर 4। आप लिख सकते हो सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल होगा MNC। तो MNC के लिए हम क्या करेंगे, हाफ। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेंगे, एल्टीट्यूड दोनों में कॉमन है और बेस दोनों में अलग अलग है। तो लोअर बेस होगा NC और एल्टीट्यूड हो जाएगा MQ। ये हो गया नंबर 5। अब हम लिखेंगे टेकिंग रेशियो ऑफ 4 and 5। So what you will get here, AMN upon MNC is equal to half AN into MQ, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ NC into MQ। कैंसल MQ and half, what you will get, AMN upon MNC is equal to AN upon NC। गिव नंबर 6। ओके, तो दो रेशियो मिल गए, देखो AN अपॉन NC, यहाँ पर मिल गया AN अपॉन NC। क्लियर। और यहाँ पर मिल गया AM अपॉन MB। ओके, तो अब हमें ये लिखना है कि सिंस, देखो ये दो ट्रायंगल MNB और MNC कहाँ लाई करते हैं, सेम बेस के नीचे लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल MNB एंड ट्रायंगल MNC लाइज ऑन द सेम बेस। अभी आपका बेस कौन सा है,
Mn on the same base Mn, and between the same parallel lines. अब पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं? BC और MN लाइन्स, BC एंड MN. ओके, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो हम लिख देंगे MNB इज इक्वल टू MNC. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आप इन दोनों के रेशियो को सेम नहीं कर सकते. ओके, तो ये लिख दिया, और लास्ट में आप फाइनल स्टेटमेंट लिख दो. यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो पीछे लिख देता हूँ. देयरफॉर फ्रॉम above वी कैन राइट हम क्या लिखेंगे? AM अपॉन MB. आप देख सकते हो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, जो हमने प्रूव किया यहाँ पर. AM अपॉन MB AN अपॉन NC. क्लियर? तो ये था हमारा थियरम. तो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, इफ़ यू फॉलो द सीक्वेंस, आपको ये थ्योरम बहुत इजीली हो जाएगा. आप देख सकते हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. आपको क्या करना है? सिंपली ट्रायंगल ड्रॉ करना है और पहले एक साइड का रोटेशन करना है. जैसे कि तुम भी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना, फिर तुम पहले साइड को AM अपॉन MB से प्रूव कर लेना ट्रायंगल के एरिया को लेके. देन आपको क्या करना है? सेकेंड साइड में जाना है. सेकेंड रोटेशन में आपको यहाँ पर AN अपॉन NC को प्रूव करना है. फिर आपको ये लास्ट की लाइन लिखनी है, चाहे आप MNB और MNC लिखो या ऊपर का पोर्शन लिखो, दोनों एक ही बात है. और ये लिखने के बाद फिर जाकर आपको क्या करना है? जो आपने दो रेशियो निकाले थे उसको प्रूव कर देना है. क्लियर? थियरम बहुत ईजी है, 2-3 बार देखोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको नया थियरम बताने जा रहा हूँ.